Good morning, student. My voice is audible, beta? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am, Now it's see, audible. yeah, screen visible hai. Now see, yesterday we have Yes, started. ma'am. Okay, beta. Yesterday we have started with the energy management by industry. We have completed that just with a glance. I just, if you want a kind review. मैम वो केस स्टडी पेंडिंग है. Acha, हाँ, yes. Thank you, Ajal. See, in the industrial one, first we come to know the main system that consume energy in industry. वो हमने देखा था. उसके बाद इंडस्ट्रियल एनर्जी ऑडिट जो है 2001 में एक्ट was created. Then we discuss about its need and objective. Then types of industrial energy audit में preliminary and detailed energy audit होता है. Preliminary में basic things होती है, but they are in a narrow vision but broad things like identify immediate improvements, set of reference point, scope of saving, everything used to be there. Detail may you have a pre-audit phase, audit phase, and post-audit. Pre-audit may you come to know what the aim, recommendation of the audit, everything we used to discuss after the audit. Post-audit may conclusion part is going to be there. Decide whether any meter and identify, plan, collect, this thing used to be there. दिस इज इम्पॉर्टेंट. मेरे ख्याल से इंडस्ट्रियल एनर्जी मतलब मैनेजमेंट में कुछ पूछा जाना चाहिए. सो दैट इज द इंडस्ट्रियल एनर्जी ऑडिट. फाइन. आफ्टर दैट इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड ड्यूरिंग द डिटेल ऑडिट. जो ऑडिटर्स आते हैं वो क्या क्या कलेक्ट करते हैं, जैसे एनर्जी कॉस्ट एंड टैरिफ डेटा, प्रोसेस एंड मटेरियल फ्लो, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल दिस. ठीक है. And the audit team should collect the following data baseline like capacity utilization, steam consumption, water, ये कितना क्या हो रहा है, monthly, weekly and yearly, that I explain you. Now this is a particular case study which was left yesterday. Energy audit in sugar industry, a case study was there. If this being aided, if suppose तुमसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो हिस्टोरिकल बेस डेटा कलेक्शन में इसमें बेसिकली क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कोई भी शुगर इंडस्ट्री है, अगर उसमें ऑडिट होती है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट डेटा फॉर यूटिलिटी सिस्टम लाइक सिंगल लाइन डायग्राम, कंप्लीट जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन नेटवर्क. Then complete the data for steam, water and fuel consumption in the plant. बेसिकली कोई भी प्लांट है, अगर शुगर इंडस्ट्रीज भी है, तो उसमें पर्टिकुलरली हाउ द जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन इज अकरिंग एंड कंजम्पशन उसका किस तरह का है. ये तो रहा उसका बेसिक बेस डेटा कलेक्शन. If we then they move further for the detailed discussion with the client and consumer and all. So critical loads क्या रहते हैं? Critical loads like power factor and everything used to be there. If being electronic students, you need to know the power factor of that device, EMI values and all. The peak process hours, relative variations in the load in different section, high starting kick loads, non-linear load, their load patterns. बेसिकली शुगर इंडस्ट्री में क्या होता है, जो गन्ने आते हैं हमारे पास, शुगर केन्स आते हैं, उन्हीं से हम शुगर प्रोड्यूस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक उससे जो जूस निकलेगा, फिर उससे कैसे शुगर बन रही है, वही प्रोसेस है. तो अगेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर गोइंग टू बी यूज. व्हाट हैपनिंग इन इंडस्ट्रीज और सीमेंट फैक्ट्री, that is a particularly question mark for me and all. Whatever industries are there, the apparatus which they are using, whether for the manufacturing of clothes, sugar or anything, the device is electronics, then why there is a scarcity of electronics engineer? So there is no scarcity or there is no low demand of electronics engineer. Only you need to search the scope. Electronics has a wide scope. You won't believe, मेरा तो खुद के भांजे को मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ही दिलाया. NIT दिल्ली में उसका हुआ था अभी, और I suggest him to take electronics. क्योंकि आने वाले टाइम में भी the project which are going smart city project and everything, there is a demand of electronics engineer. Only you need to make and yourself to be very positive and some bit outward. मतलब beyond सब्जेक्ट तुम जाके सोचोगे तो ब्राइट फ्यूचर है तुमसे. बट मुझे मैसेज करना मत भूलना जब भी जॉब लगे. ओके. सी
इसमें यही है कि डिटेल में हम जाते हैं तो जो भी मशीनरीज हम यूज कर रहे हैं उसके क्रिटिकल लोड्स क्या हैं, रिलेटिव वेरिएशंस क्या है, मेजर एरिया ऑफ एनर्जी सेविंग्स क्या है, लाइक फैन, ब्लोवर, पंप्स, ये सब लगे रहते हैं इंडस्ट्रीज में। ड्यूरेशन एंड टाइम ऑफ डेटा कलेक्शन फॉर एवरी नोड, finalize the master plan to collect entire energy data, harmonic data, transient data, finalize overall terms of reference. इवन दो जैसे यहाँ भी जो इंडस्ट्रीज है टेक्सटाइल में और दूसरी जगह भी अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक सीमेंट इंडस्ट्रीज वगैरह जैसे सीमेंट एंड ऑल है, तो वहां पर भी जो इंजीनियर्स होते हैं, जूनियर इंजीनियर है, सीनियर इंजीनियर्स है, इनकी शिफ्ट में ड्यूटी होती है। इवन RSWM इन प्लांट्स में भी तुम देखोगे वाई इट इज सो, क्योंकि कुछ कुछ क्रिटिकल वैल्यूज जो है जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट्स नहीं कर सकते, उनके लिए प्रिसीजन के लिए सीनियर पर्सन ही ऑथराइज रहते हैं। सो ये सारा उसमें निकालना रहता है। उसके बाद मतलब फर्स्ट है टारगेट क्या रहता है उसमें, पहले तो बेस डेटा कलेक्शन करेंगे कि क्या क्या सामान है, क्या सिस्टम है, हाउ द स्ट्रक्चर इज देयर। आफ्टर दैट जो भी मशीनरीज और सिस्टम्स है, हाउ दे आर वर्किंग एंड व्हाट अमाउंट of time they are consuming the data and everything. Third is actual data collection. It was ensured that the data sampling time and the duration that is going to be data for data collection is strictly as per the master. It is ensured the required parameters, their peak hours per minute values. Then फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रशिंग रेट्स, पावर एक्सपोर्ट, स्टीम फ्लो, ये सब देखते हैं। अदर सप्लीमेंट्रीज में लाइक you have the capacitors provided, cable and switch gears, that is going to be there. After your actual data collection means पहले तो डिटेल कलेक्शन हुआ कि क्या सामान है वहाँ, कितना कंज्यूम हो रहा है, फिर जो एक्चुअल डेटा कंज्यूम होता है उसमें ये 4 पॉइंट्स रहते हैं। फाइन। आफ्टर दैट द फाइंडिंग्स, सारा कलेक्शन ले लिया कि कब पीक आवर्स है, कब लो रहते हैं, क्या वैल्यू आती है। आफ्टर दैट द सिस्टम कंडीशंस, प्रोसेस कंडीशन, क्रशिंग रेट्स, जो भी कई बार तुमने देखा होगा शुगर कई जगह तो मोटे दाने वाली रहती है, कहीं बारीक रहती है, तो क्रशिंग रेट उसका कुछ डिसाइड करते हैं। तो जो वो लिक्विडिटी के फॉर्म में शुगर रहता है, उससे जो मुझे क्रशिंग फॉर्म में शुगर चाहिए तो उसकी थिकनेस हम बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो पावर एक्सपर्ट, स्टीम ब्लो कितना देना है, कैपेसिटर्स यूज टू बी प्रोवाइडेड, वो कैसे क्या है, दैट इज गोइंग टू बी। फाइंडिंग्स की जब बात आती है शुगर इंडस्ट्रीज में, तो परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ डीसी ड्राइव that was on a lower side, resulting into the higher harmonic injection, tuned harmonic filters, isolated running of DG sets, providing VFDs for all boilers, ID, FD fans, that is going to be. After getting these findings, finally लिखना तो नहीं चाहते हो ना, बस ये तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ ये है, ठीक है। आफ्टर डूइंग गेटिंग दिस रिकमेंडेशंस की जहां तक बात आती है तो फिर वो रिकमेंड करते हैं टू प्रोवाइड रिएक्टिव पावर कंपनसेशन ऑन एलवी साइड ऑफ डीसी ड्राइव, टू प्रोवाइड द कैपेसिटर, दिस इज द सेकंड पॉइंट, directly at the load and at the some places. Parallel running of DG sets with auto set point to control the improved utilization. फिर इंटीग्रेशन ऑफ VFDs जो होती है ना, ऑल बॉयलर्स, ID, FDs, फैंस, इन सब की रहे, ठीक है। आफ्टर ऑल दिस ऑडिट फाइनली कंक्लूजन ये रहता है, what those auditor used to do: market conditions, asset management strategy, corporate involvement, a structure of authorities, and linking energy performance to business goal. All that seems to be what major factors रहते हैं जो कि एक effective corporate energy management program के लिए जरूरी है। तो वो ये evaluate करते हैं। more and more companies जो रहती है, they are tailoring programming to their own particular characteristic and need. The approach to energy management reflects the organizational profile, abilities, their commitments to improving productivity, profit to the more efficient use. That is going to be there. So basically, यही जो प्रोसेस है सेम, वेदर अगर केस स्टडी सेम आ जाए तो वेल एंड गुड, अगर शुगर इंडस्ट्री की केस स्टडी ना आके अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की भी आती है तो उसमें भी यही मेन पॉइंट रहेंगे, क्योंकि जिससे भी डिजाइनिंग या मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है एनी हाउ तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज ही है, तो उन सब में तुम्हें क्रिटिकल लोड्स, पीक प्रोसेस आवर्स, नॉन लीनियर लोड्स,
मेजर एरिया ऑफ सेविंग यही देखना रहेगा। और उसके बाद एक्चुअल डेटा, मतलब थोड़ा बहुत वर्डिंग्स में डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ क्रशिंग रेट लिखा है, वहां पे क्लोथिंग रेट आ जाएगा, क्लोथिंग थिकनेस, क्लोथिंग फैब्रिक, मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिक। तो कुछ कुछ जगह थोड़ी सी क्लेवरनेस करके चेंजेस करना रहेगा। बाकी पॉइंट्स यही रहेंगे। कोई भी कैसे स्टडी पूछेंगे तो उसमें बेसिक डेटा, डिटेल डेटा डिस्क्रिप्शन, फिर एक्चुअल जो डेटा कलेक्ट करते हैं, मतलब ये जो डेटा है ये इंडस्ट्री उन्हें फाइल में प्रोवाइड करती है। Like this is our structure, this is a consumption and everything. Then actual data collection is the auditors which used to be there, their team used to be there, और वो क्या करते हैं, actual data was collected for 3 months in a different departments. It is not 1 or 2 days audit. So 3 months वो वहीं पे data collection जो actual करते हैं वो value लेते हैं, फिर percentage of utilization that what the value they have given and actually we observed in a 3 months, फिर उसका percentage निकालते हैं, फिर recommendations and conclude करते हैं। Is it clear? ठीक है। आंचल, भावना, मनदीप, शिवांगी, वंदना, कुणाल, I suppose today is your first class? यस मैम। मैं कल डालने वाली थी 0 अटेंडेंस वाले स्टूडेंट्स का, बट मेरी दूसरी लैब आ गई थी। आज जरूर मैं ग्रुप में डालने वाली। ठीक है, इज इट क्लियर? तो कोई भी केस स्टडी हो तो मैं यही पॉइंट्स उसमें लिखने हैं। आनी नहीं चाहिए बट 1-2 बार पूछी गई है, 1-2 पेपर मैंने देखे। तो एनर्जी ऑडिट अगर केस स्टडी में आता है तो ऐसे पॉइंट बना के लिख लो। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस डेटा कलेक्शन, detail discussion with the client and consumer to identify detail. Third is the actual data collection. Actual data collection के bracket में लिख लो which is going to observed by the auditors. ठीक है, फिर फाइंडिंग्स के ब्रैकेट में लिख लो ऑब्जर्व्ड एंड गिवन, मतलब जो डेटा इंडस्ट्री ने दिया है और जो इवैल्यूएट किया है वो। फिर रिकमेंडेशंस की तुम्हारी जो वैल्यूज है या 2-3 क्रशिंग सीजन्स है या जो भी है ऑडिटर्स की, कि दीज आर द प्लेसेस टू विच वी नीड, विच योर फर्म नीड टू करेक्ट, और ये है। ठीक है, तो वो देखना है। इज इट क्लियर? शुड वी मूव अहेड? यस मैम। तो कोई सी भी अगर आएगी, वैसे तो आनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर मेन एग्जाम में तुम्हारी केस स्टडी आएगी और होगी 15 मार्क्स की, तो इसी तरह से तुम्हें लिखना है। बट अगर शुगर इंडस्ट्रीज की ना आके किसी भी फर्म की आती है तो उस जगह यूज करना है। सी बॉयलर्स, ये जो बेसिक इक्विपमेंट जो मैंने तुम्हें सबसे पहले बताए थे ना, ये हर जगह मिलेंगे तुम्हें, कोई सी भी इंडस्ट्री हो, बॉयलर्स। इसलिए मैंने कल भी कहा था और ऑन द लास्ट वीक ऑल्सो आई फिनिश्ड हियर कि ये पॉइंट्स तुम लिख लो। लाइटिंग, मोटर्स, रेफ्रिजरेशन, ड्राइंग, ये हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस, ये हर जगह काम में आती है। ठीक है, now we are starting with our second topic of this unit, that is introduction to the building energy management system. ठीक है, मतलब ये एनर्जी मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग्स एंड हाउसेज। उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक पावर का रहेगा। इस वीक में तुम्हारी 1-2 क्लासेस और ले सकती हूँ, मतलब ये मुझे लगेगा तो। आई जस्ट वांट कि तुम्हारा मैं मतलब मई एंड तक कंप्लीट कर दूं। देखते हैं, लेट्स सी। मेरी लैब्स वगैरह का शेड्यूल देख के आई विल इन्फॉर्म यू। कल तो क्लास होगी, उसके बाद एक क्लास और शायद मैं लूँ तुम्हारी। ठीक है, नाउ वी आर ऑन दिस पार्ट। सो बिल्डिंग एनर्जी मैनेजमेंट में क्या होगा, BEMS. So basically building energy management system, BEMS, is what control the function of building, allowing a smooth operation and efficient functioning of building. ये इसकी डेफिनेशन तो लिख ही लो। और 1997 में IEA जो था उसने इसको किस तरह से डिफाइन किया है,
An electrical control and monitoring system that has been the ability to control monitoring points, operator terminal. System can have attribute for all facts. Management function as heating, ventilation, air condition. That is HVAC. किसी ने पूछा नहीं था उस दिन फुल फॉर्म, बट HVAC का फुल फॉर्म क्या है? हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग. दैट इज अ सिस्टम. तो HVAC टू लाइटिंग, फायर अलार्म सिस्टम, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस एंड एनर्जी मैनेजमेंट. एक स्टैंडर्ड जो बिल्डिंग हाउस मैनेजमेंट रहता है, जैसे फॉरेन में तो ये BEMS के थ्रू ही, वो भले ही छोटा सा 1 BHK 2 BHK जो भी रहने का रहेगा, बट इन दैट all facilities like fire alarm system, security, maintenance, energy management, everything used to be there, like heating and ventilation है और ये सब. So HVAC system जो है तुम्हारा heating, ventilation and air conditioning, ये इंडस्ट्रीज में भी रहता कि जो भी प्लांट जहाँ पर भी मशीन इस्टेब्लिश हुई है वहाँ हीटिंग, वेंटिलेशन और AC का सही से है कि नहीं. सी ये डिफाइन लिख लो और ये जो IEN है डिफाइन किया है, इसको ये लिख. फिर अनदर कॉमन डिस्क्रिप्शन जो इसका यही है, ये लिखने की जरूरत नहीं है. कंट्रोल द system for individual buildings or groups of the building which use the computers, distributed microprocessor for monitoring, data storage and communication. Other term which is frequent to use, या तो तुम्हें BMS करके आएगा, building management system, और या तो EMS करके आ जाएगा. Sorry, technical are BMS and energy management, EMS. EMS करके आएगा तो EMS for building आ जाएगा, और BMS आएगा तो itself it is a building management system that is going to be there. Write down fast. लिख लिया क्या बेटा? बेसिक से भी ये 2 पैरा ही लिखना है, नीचे का नहीं लिखना था तुम लोगों को. Yes, ma'am, done. या Yes, ma'am. ओके. नाउ BMS टेक्नोलॉजी जो रहती है, इसका एक क्वेश्चन श्योर है तुम्हारे RTO में. That is broad concept of building control and can have a variety of characteristics. So BMS जो है that is limited to use sophisticated advanced control system. IEA 1917 में जो उन्होंने 1907 में करा. So all buildings require and have some form of control system. So BMS technology is substantially different from previous control system. How the main points in which BMS, ये तुम लिखो इसमें, how the BMS differ from other control system. Building energy management system दूसरे system से कैसे differ करता है. The characteristics of the communications में information of the process and function of the building can be received and controlled at a central single operating unit. Therefore, decision can be made based upon the received information, and it allows optimization of the system.
These are the 2 points why BMS prefer other than other control system. ऐसा नहीं है BMS के पहले कुछ और बिल्डिंग मैनेजमेंट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं थे या जो भी है थे, लेकिन उनसे ये 2 पॉइंट्स डिफर करता है। ये लिखो। ये भी मैं इसलिए कह रही हूँ तुम्हें लिखने को, 2 मार्क्स में अगर आया what are the main points of BMS differ from other, so at least you have a point to note कि इसका जो है सेंट्रलाइज और सिंगल ऑपरेटिंग यूनिट होता है एंड ऑप्टिमाइजेशन भी सिस्टम में। एक तो देखो कुछ चीजें जो है स्कैटर्ड वे में जाला, एक फायर सिस्टम अलग है तुम्हारा, पर्टिकुलरली दूसरी टेक्नोलॉजीज जो यूज होती है बिल्डिंग मैनेजमेंट में सबके अलग अलग तुमने कर रखा, और एक ही बॉक्स में वो सारी चीजें आ जाए और उसका कंट्रोल सॉफ्टवेयर के थ्रू हो, तो नेचुरली वो जगह को भी ऑप्टिमाइज कर रहा है और सिस्टम भी मेरा एक जगह है, तो मुझे पता है कि यहाँ पर देखना है मुझे। ठीक है ना? ओके, कंप्लीटेड बेटा? Done, ma'am. इसमें ऐसे बताया है नीड नॉट टू राइट, बट जैसे ये घर है सपोज, सो लाइक स्मार्ट मीटर, a communication gateway between the smart grid and the home. Geothermal heat pumps, लाइक ये एक कह सकते हैं, इसको डायग्राम को तो मत बनाओ, बट जो चीजें एक BEMS सिस्टम में होती है उसमें क्या क्या होता है तुम्हारा। सी दिस फिगर इज इलस्ट्रेटिंग, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो तुम। It is the possible BEMS configuration in which multiple buildings are connected to each other and connected via internet to a central operating unit. ये लिख लो बेटा, मतलब BMS में होता क्या है, ये डायग्राम का तो स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद मैं इंडिविजुअल लिखवा दूंगी, क्योंकि एज आई टोल्ड यू थर्ड फोर्थ यूनिट में तुम्हारे लॉन्ग आंसर्स बनते हैं। ठीक है, सो बेसिकली दिस फिगर इलिस्ट्रेट ना लिख के ऐसे लिख लो कि BMS कॉन्फ़िगरेशन जो रहती है इन दैट मल्टीपल बिल्डिंग्स यूज्ड टू बी कनेक्टेड विद ईच अदर्स and via internet to central operating unit to allow smooth cooperation among the buildings and increase efficiency. Increased cooperation among different buildings used to be allow for the additional increased energy efficiency as well as the function of different buildings can be coupled. इसमें जो इंडिविजुअल होम के सिस्टम को भी हम एक जगह सेंट्रलाइज कर देते हैं। ये जैसे बहुत दूर की बात नहीं कहेंगे कि ये कंसेप्ट इंडिया में नहीं आया है, इन जयपुर एंड ऑल में भी तुम देखोगे जो वेरी पॉश एरिया जैसे वैशाली वगैरह है, अगर हम राजस्थान की बात करें, सो इन दैट पर्टिकुलर एरियाज जो फ्लैट्स वगैरह हैं 1.5 करोड़ या इतने के वो देते हैं, रहते तो 2 या 3 BHK ही हैं। ओके फाइन, जिम एंड एडिशनल फैसिलिटीज आर एवरीवेयर। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका जो सारा मॉनिटरिंग सिस्टम्स वगैरह है, और ये जो गैस का भी उन्होंने वो वाला कर लिया है, अडानी ग्रुप्स वाला जो आ रहा है, कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी आती है उसी तरह से गैस की भी पाइपलाइन को यूज करके, मतलब सिलेंडर यू नीड नॉट टू बुक, और जितना कंज्यूम आप से यूज करोगे इन कुकिंग उतना आपका उसका बिल आएगा। तो वो सेंट्रलाइज वे में वो चीजें प्रोवाइड करना, तो कॉस्ट किसी भी जो बिल्डिंग की है हाई कॉस्ट, उसकी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है उस पर। तो ये बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम भी जो हम इसमें हायर लेवल का देख रहे हैं वो यही है कि सारी चीजों को सेंट्रलाइज करके और फिर उसका कंट्रोल। तो इससे क्या प्लस पॉइंट आता है वो ये है कि अगर कहीं पर भी कुछ भी लो पावर या हाई लोड पावर का इशू आ रहा है या AC में कोई दिक्कत है या क्या है, तो वो सेंट्रलाइज वे में इंडिकेट हो जाती है, इस फ्लोर के इस प्लेट में ये प्रॉब्लम आ रही है इलेक्ट्रिसिटी या इसके रिगार्डिंग, और कैसे सॉल्व होगी। सेम थिंग जो इंटरनेट से कनेक्शन, अभी जितनी भी मशीनरी शुगर इंडस्ट्री हो टेक्सटाइल किसी में भी आए,
तो वो मशीन का इन्वेंशन ही ऐसा हो रहा है कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी विद दी सॉफ्टवेयर, सो दैट एक तो वो इंजीनियर जो रहेगा उसकी फॉल्ट हार्डवेयर में सॉर्ट आउट करता रहेगा, उसकी बजाय नेट पे डायरेक्ट आ जाए कि इस पॉइंट पे मिस्टेक है और ये है, तो ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग में टाइम जाता है, तो मतलब जो है टाइम जो है वो सेव हो रहा है। दैट इज व्हाई एनर्जी मैनेजमेंट इज नीडेड। ये लिख लिया तुमने? ठीक है, आई सपोज लिख लिया होगा इतनी देर में। हाँ बेटा, भावना, कुणाल, मोहित, शिवांगी, वंदना। इसमें और कुछ भी नहीं था, ये मेन पॉइंट यही है कि मल्टीपल बिल्डिंग्स जब कनेक्ट हो जा रही हैं और उसका कंट्रोल जो है सेंट्रलाइज वे में इंटरनेट के थ्रू, एंड एडिशनल एनर्जी एफिशिएंसी वगैरह इसलिए प्रोवाइड होती है। इसका एक प्लस पॉइंट भी ये है कि कहीं मिसयूज या मिसकंज्यूम हो रहा है तो उसको वहां से बंद करके कहाँ यूज किया जा सकता। ये एक इमेजिनेशन एट वर्क, इसका तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। अब इसमें जैसे एक स्मार्ट बिल्डिंग का ये बताया है कि एक तो स्मार्ट मीटर होता है, दैट इज अ कम्युनिकेशन गेटवे बिटवीन अ स्मार्ट ग्रिड एंड द होम। फाइन। जियोथर्मल हीट पंप होता है, रिड्यूस द HVAC एंड वाटर हीटिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट अप टू 30%। ठीक है, हीटिंग और क्या था, वी फॉर क्या था तुम्हारा, यहाँ था ना, अभी मैंने फुल फॉर्म बताया था तुम्हें, कहाँ गया, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। सो ये HVAC को मैनेज करता है, ये रहा यहाँ पे। जी हीट पंप में क्या होगा, वाटर हीटर uses less than half the energy of the conventional electric power water heater। जो हमारे गीजर्स वगैरह है उसमें जितना टाइम लगता है उससे आधे में ही गर्म करके और हाईली इफिशिएंट वे में दे रहा है। ये तुम्हारा है GE वाटर फिल्टरेशन। इसमें क्या होगा, फिल्टर कंडीशंस एंड मॉनिटरिंग होम वाटर यूसेज। एनर्जी स्टोरेज में दिस इज बैकअप पावर के लिए है। डिमांड रिस्पॉन्स अप्लायंसेस लाइक हाई एफिशिएंसी एनर्जी स्टार अप्लायंसेस लोड फ्रॉम द ग्रिड एंड हेल्प कंज्यूमिंग सेव मनी ड्यूरिंग द पीक डिमांड्स, ये यहाँ पर है। लाइटिंग के लिए हाई एफिशिएंसी जो तुम्हारे CFL LEDs रहती है वो यूज करना करें। सोलार फोटोवोल्टिक यहाँ लगा रखी है जो जिससे 3 kVW और जो 4 kVW सोलार प्लेट्स नहीं रहती है, दैट टू मीट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। स्मॉल वाइंड भी अगर हम लगा सकते हो, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके क्या एरिया भी ज्यादा चाहिए और अच्छे से सिचुएट होनी चाहिए, क्योंकि इट यूज टू बी वेरी बल्की, इफ नॉट इम्प्लांटेड प्रॉपरली तो लॉस होने का चांसेस रहता है, बट अगर हम लगा सकते हो तो दैट इज ऑल्सो गुड। Home Energy Manager, Central Nervous System for the Net Zero Energy Home helps for the hometown optimization energy consumption. Is it clear? इस तरह से पिक्चराइज किया गया है कि मतलब स्मार्ट बिल्डिंग मैनेजमेंट में ये कि जो भी सिस्टम हम यूज करें उसमें टाइम कम कंज्यूम हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम हो और जल्दी हो और हाईली इफिशिएंट। दैट इज द बिल्डिंग एनर्जी मैनेजमेंट। इज इट क्लियर? अब इसके बाद अटेंडेंस में लेती हूँ, पहले एक बार लेट बी नेक्स्ट टॉपिक। सेवरल कॉमन फंक्शन कैपेबिलिटीज होती है BEMS की, ये तुम लिखना चाह रहे थे क्या? ये अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो उसमें आ जाएगा। मतलब यही हम कह रहे हैं कि एक जो स्मार्ट BEMS सिस्टम है उसमें हम सोलार फोटोवोल्टिक प्लेट्स भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल वाइंड इफ पॉसिबल। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी हम गीजर आजकल RO वाटर प्लांट है, मीटर एनर्जी मीटर्स है, हीट पंप्स है, वो सब भी हम इस तरह के यूज कर रहे हैं कि उसमें कंजम्पशन कम हो और टाइम कम हो। फाइन। नाउ द सेवरल कैपेबिलिटीज जो रहती है बिल्डिंग एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम की, दैट इज द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट ऑपरेशन, provision of energy management information, remote monitoring and control of services and the function of one several buildings, and along with this possibilities of automatic control of services and the function। ये जरूर हो रहा है लाइक इंस्टेंस ऑटोमेटिक स्विच ऑन स्विच ऑफ ऑफ द अप्लायंसेस, कि अगर कोई भी किसी रूम में नहीं है और AC चालू रह गया है तो उसको अपने आप बंद करना, फैन को बंद करना। मॉनिटरिंग ऑफ बिल्डिंग स्टेटस एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन,
that is going to be there. Common benefits from the use of BMS जो है वो देख सकते हो. ये फंक्शनल्स तो अपन ने ऊपर भी लिखे थे, बेनिफिट्स जरूर तुम लिख लो कि अगर हम BMS यूज करते हैं तो क्या बेनिफिट्स आता है. इसको एलोबरेट करने का भी आएगा तो तुम लिख सकते हो लाइक increased energy efficiency, improved environmental condition, more efficient use of staff, improved fire security and other emergency procedures, standard plant and building functioning हो जाती है, improve management of the building. Basically सामान वही का वही रहता है और स्टाफ भी वही रहता है, बल्कि इनको इम्प्लीमेंट करने से स्टाफ हम कम ले तो भी चल जाता है, लेकिन सारी चीजों का एक लाइक फंटास्टिक तरीके से हम यूज कर पाते हैं अगर हम BMS को फॉलो करते हैं. लिख लो. थोड़ा सा ही रह गया तो मैं बस करा देती हूँ तुम्हें. इसके अलावा एक और हो गया बेटा. लिख लो जब तक, पहले मैं अटेंडेंस लेती हूँ. अब इसमें ज्यादा नहीं बच रहा है ऐसे. प्रोजेक्ट वगैरह का भी तुम करते रहो. मैं एंड ऑफ मई में पूछती हूँ. आंचल, भावना, Yes, ma'am. कुणाल, Present, ma'am. मनदीप, मोहित, Mandeep present. शिवांगी, सिद्धार्थ. शिवांगी प्रेजेंट मैम. ओके. सिद्धार्थ present ma'am. मेरे को क्लास खत्म हो जाए उसके 5 मिनट बाद कॉल कर लेना बेटा तुमने ना. ठीक है. वंदना. ओके मैम. क्या? Dana present, ma'am. ओके. मैंने आज ही अभी RTO का कैलेंडर देखा था. ओके भावना. तो उसमें पर्टिकुलरली आ रहा है तुम्हारे, मतलब कैलेंडर तो आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा जून सेकेंड वीक तक है लास्ट. पता नहीं अब पैंडेमिक से आगे बढ़ेगा वैसे तो नेचुरली, बट देन ऑल्सो ओके वंदना ट्राई टू डू वर्क ताकि तुम्हें लास्ट में परेशान ना होना पड़े, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी बहुत इम्प्रूव भी हो गई या जो भी रहा. सेफ्टी वगैरह तो 2-3 महीने अभी और रखनी ही रहेगी सबको. तो काम करते रहो अपना, और हो जावे तो असेंबल वगैरह जब वापस से जीरो मोबिलिटी हटके थोड़ा स्टार्ट हो जाए आना जाना, तो काम कंप्लीट करके. मेरी रिक्वायरमेंट यही है कि अभी तो कॉन्फ्रेंस में तुम्हें कुछ ट्रैवलिंग वगैरह भी नहीं लगना है, और टेक भी 6 महीने बढ़ गया है. देखेंगे अगर सिर्फ एकेडमिक के लिए बढ़ा है या क्या है, बट कॉन्फ्रेंस और पब्लिकेशन का तुम थोड़ा सा ध्यान रखना. वो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बेहतरीन है कि तुम्हारी रिपोर्ट में एक कॉन्फ्रेंस का सर्टिफिकेट और एक इंटरनेशनल जर्नल का सर्टिफिकेट हो. और कॉन्फ्रेंस तो पेड रहती है, कुछ जर्नल्स जो UGC अप्रूव वगैरह रहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहते हैं अगर तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा हो, तो यू कैन गो फॉर देम. सो थिंक फॉर द सॉल्यूशन रादर टू फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम है. ठीक है. अब यहाँ पर हायर इन डिसएडवांटेजेस भी है. कोई भी अच्छी चीज आती है सो अलॉन्ग विद दैट वो कुछ डिमेरिट्स भी लाती है. लाइक ओके फाइन वी आर मेकिंग सच अ सेटअप, बट इनिशियल कॉस्ट उसमें बहुत ज्यादा. ये लिख लो, क्योंकि अगर पूछा जाए कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, तो मेरिट में ये बेनिफिट्स आ जाएंगे बाय यूजिंग द BMS. ये चीजें इंप्रूव होती हैं. डीमेरिट्स में जैसे हम बातें तो कर रहे हैं इतने स्मार्ट सिस्टम की, बट इनिशियल कॉस्ट जो रहती है वो बहुत हाई है for design and installation. Operation and maintenance costs might be higher compared to the simple management, naturally, and it is capable of reducing overall cost. मतलब ओवरऑल कॉस्ट तो बाद में रिड्यूस होती है, लेकिन इनिशियल सेटअप वगैरह में जो चीजें लगती है वो बहुत हाई है. और नेचुरली स्किल्ड ऑपरेटर्स चाहिए. मतलब ये है कि
पहले तो कोई भी चीज एक लाइक सिक्योरिटी गार्ड और 2-3 और इसी तरह के ITI मेंबर्स से डीजीसेट वगैरह तुम अपन मैनेज कर सकते थे, बट इसमें एक इंजीनियर उसकी जरूरत भी है. इट रिक्वायर्स कमिटमेंट एट ऑल लेवल्स थ्रू आउट इट्स ऑपरेशनल लाइफ टू मेंटेन मैक्सिमम इफेक्टिवनेस. दैट्स इट. ये लास्ट ही है, जल्दी लिख लो. इसके बाद एक और कुछ इसकी डिटेल है, मैं देखती हूँ. अभी 5 मिनट है, जब तक बताती हूँ. पहले ये लिख लो. टेक्सटाइल में तो मिड टर्म भी हो रहे हैं, तुम्हारे मिड टर्म क्यों नहीं हो रहे हैं? आई एम नॉट गेटिंग. क्योंकि मेरे पास कल परसों ही फोन आया था टेक्सटाइल के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का, ये लिंक चाहिए थी. कोई मैंने उन्हें यही कहा कॉलेज के चैनल पे, उनको भी एनर्जी मैनेजमेंट ही है ना, वो तो पढ़ना भी चाहते हैं, बट मैंने कहा ये देख लेना इसमें. लेट्स सी तुम लोगों के कब मिड टर्म होते हैं. उनके तो मिड टर्म है अभी 1-2 दिन में. हो गया क्या बेटा? बेसिकली मोटे तौर पे सिर्फ ये लिखो कि हायर इनिशियल कॉस्ट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी हायर है एज कम्पेयर टू सिंपल मैनेजमेंट. नीड फॉर स्किल्ड ऑपरेटर, ये भी एक पॉइंट है. और कमिटमेंट्स एट ऑल लेवल्स चाहिए. मतलब हम किसी भी अच्छे सिस्टम्स की बात करते हैं, सो इट रिक्वायर्स कमिटमेंट, और उस कमिटमेंट को जो हम कर रहे हैं इन टाइम कंप्लीट होना, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, one more is there. ये जो मुझे डायग्राम तुम्हें बताना था BEMS का, that was there in like, चलो ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. मेनली दिस वन डायग्राम. BMS आर्किटेक्चर, वो जो चीज थी वो तो एक स्टैंडर्ड फ्लो में थी. यहाँ से अपन कल स्टार्ट करेंगे, जस्ट रिकॉल मी. उसके बाद वी विल गो फॉर एनर्जी मैनेजमेंट बाय ट्रांसपोर्ट. इसका मैं तुम्हें पूरा ये तुम्हें बनाना भी है पैरेलल विथ मी. फिर अगर आएगा ये, अगर 15 मार्क्स या 10 मार्क्स किसी में भी आता है, तो इंडिविजुअली ईच सेंट्रल जो सर्वर है या ये, इसमें ये पूरा बताया है. जो पहले डायग्राम अपन ने देखा जिसके अप्लायंसेस वगैरह थे, वो एक पिक्चरियस प्रैक्टिकल व्यू था. टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोगों को रिले, वर्क स्टेशन, एक्चुएटर्स, वायर्ड सेंसर्स, ये क्या क्या चाहिए, ये इस डायग्राम. So we'll start tomorrow from this BMS architecture. Okay. See you. Take care, beta.